Definitely, there is an increase in number of young patients that come to my door now. Many of them come कि इतना strong heart attack हुआ होता है that half of their heart function is already gone. अगर मैं identify करके उनको बताता हूँ कि ऐसे आपको risk है, उसको seriously लेते नहीं. इग्नोर कर देते हैं. हाँ, इग्नोर कर देते हैं. ये जो डिनाइल है, ये बहुत कॉमन है हमारे कंट्री कि ये मुझे नहीं हो सकता है. आपके ब्रेन में सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज या क्लॉट्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, आपके हार्ट में हार्ट अटैक हो सकता है, आपके किडनी फेल हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में खून का सप्लाई बंद होने की वजह से इंटेस्टाइन्स मर सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है, पैरों में गैंग्रीन हो सकता है. ओनली 50% ऑफ इंडियंस आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी. इमरजेंसी सिचुएशन था, लोग मर रहे हैं, एवरी मिनट एवरी सेकेंड वी हैड डेथ्स. ये इफेक्ट होता है तो एओर्टा भी इफेक्ट हो जाता है, मतलब छाती में एओर्टा फूल जाता है, डायलेट हो जाता है, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं. ये सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है. कुछ 10 मिनट के लिए भी ब्लड सप्लाई रुक गया तो वो हार्ट मसल का उस रीजन का डेथ हो सकता है. अगर दिन में 10 पेशेंट्स आपके पास आते हैं, हाँ जी, तो उनमें से कितने परसेंट एज ब्रैकेट 30 की एज में, कितने परसेंट 40 और 50 और कितने ओल्ड एज? India has one of the best medical systems in the world. I have worked across 3 continents for the last 7 years and across 3 medical systems. Hands down, India is one of the best. Hello and welcome back to NH Talk Show, a show where we explore the world of health, wellness and medical breakthrough. Today we will be focusing on one of the most critical challenges of India, which is cardiovascular health. Do you know that cardiovascular disease is one of the leading causes of deaths in India, accounting for 28% of all deaths? What even more concerning is that it's not a disease for old ages anymore, and a lot of young people in the age bracket of 30, 40 and 50 are also suffering from heart health issues. I've got some facts with me written here and let me just read it out for you. To begin with, we will cover global data. So the leading cause of death is cardiovascular disease. That is leading cause of death globally, responsible for 17.9 million deaths each year. That accounts for 31% of global death. So you can imagine the number. The deaths that are happening globally each year, 31% of that is due to cardiovascular health issues. Number 2, the main type of cardiovascular disease, including coronary artery disease, stroke, heart failure, and peripheral artery disease. High blood pressure, hypertension is one of the primary risk factor for heart disease and affects 1.2 billion adults globally. Lifestyle factor is one of the major reason for having heart issues. Unhealthy diets, physical inactivity, tobacco use, excess of alcohol consumption. Talking about some Indian numbers, cardiovascular disease is leading cause, as I mentioned, of mortality in India as well, contributing to 28% of total deaths. Over 2.1 million people die from heart disease every year in India. India has witnessed a concerning rise of premature deaths due to heart disease, particularly among the people younger than 50 years. And we all have seen a lot of celebrities are also dying because of poor heart health at the age of 40, 30, 35. India is often referred to diabetic capital of the world, and diabetes is the major risk factor for heart disease. Roughly about 77 million people in India have diabetes, further increasing the risk of cardiovascular issues. तो इतने सारे हार्ट के इश्यूज इंडिया में चल रहे हैं और जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट हेल्थ इश्यूज हैं. Anyways, with the rising burden of heart health issue, it's more important than ever to learn, to understand how to keep your heart healthy. And to guide us through, we have our expert, Dr. Niranjan Hiramat. He is a senior consultant cardiovascular and aortic surgeon at Apollo New Delhi. Welcome, Dr. Niranjan, to NH Talk Thank you. Show. And to begin the show, to kick off the show,
we all know that heart disease or cardiovascular disease is one of the leading causes of mortality हाँ जी. in India. तो आप बताएं थोड़ा सा डिटेल में कि ऐसा क्यों है कि हार्ट डिजीज से ही ज़्यादातर लोग मर रहे हैं. अभी आपने सही कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर इन द शो. इट्स एन ऑनर टू बी हियर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे आपने कहा, ना कि इंडिया में बट इवन वर्ल्ड वाइड इट्स द नंबर वन किलर right now. Heart disease is the most common, and the lifestyle related disease with the increasing incidence of stress, फिर diabetes, hypertension और sedentary lifestyle जो हम जी रहे हैं, stressful life जी रहे हैं, उसके वजह से आजकल incidence इतना ज़्यादा बढ़ गया है that it's time to step back and take a closer look and देखें कि how can we control this. And that is exactly what is required as of now. But tell me, we're talking about right now, but आप बताएं 80s और 90s में भी I remember मतलब तब के आंकड़े तो मेरे को exactly नहीं पता है कि was it the leading causes or no, but even then there were a lot of people. In fact, my mother, she in fact had heart attack. Yes. तो उस समय भी ये काफ़ी था, बट उस समय ऐसा कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं थी. पीपल यूज्ड टू डू होम चोर्स देमसेल्फ एंड दे वर वर्किंग एज वेल. बट तब भी ये काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी फेमस था. मतलब लोगों के अंदर जिसमें काफ़ी मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई था. तो उस समय ऐसा क्यों था, या ये शुरू से चल रहा है, या आपके हिसाब से ये अब ज़्यादा होने लग गया है? ये मल्टी फैक्टोरियल है. अगर मैं सही से बताऊं तो पहले भी था और बाद में भी होगा. अभी इंसिडेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ गया है. ठीक है. पहले जब होता था, देखिए कार्डियक डिजीज जब होते हैं वो दो मेन रीजंस के वजह से होते हैं. एक जो मैंने अभी आपको कहा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है. दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं हम इसको. अगर माँ बाप में या फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक डिजीजेस का, या सिबलिंग्स में है, तो इट इज़ क्वाइट कॉमन और क्वाइट ऑफ्टन आपको देखने को मिलेगा कि इवन सिबलिंग्स या बच्चों में भी वो पास ऑन हो जाता है. और कुछ चीज़ें जैसे फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया, इट्स अ लॉन्ग टर्म, लेकिन बेसिकली क्या है कि इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इम्पेयर्ड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म हमारे फैमिली में भी चल सकता है, मतलब जेनेटिकली पास ऑन हो सकता है. उसमें क्या होता है कि यंग से यंग लोग जैसे 20-30 में इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्लाक्स होते हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में, जितना कि आप शायद 60 या 70 में देखने को मिले. तो उन जैसे लोगों में जो यूजुअली साइलेंट रहता है, तब तक साइलेंट रहता है जब तक फाइनली कैटास्ट्रोफिक हार्ट अटैक ना हो जाए. तो देयर आर कई ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जो फेमिलियल भी होते हैं, एंड इसके साथ अगर आप ये लाइफस्टाइल भी ऐड करते हैं या स्मोकिंग ऐड करते हैं तो और भी बढ़ता जाता है. राइट. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल, बट फॉर नाउ you're at Apollo New Delhi. What sort of common disorders that you encounter on daily basis? Definitely there is an increase in number of young patients that come through my door now. क्योंकि मैं सर्जन हूँ, मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं बाईपास सर्जरी के लिए. और इट्स अलार्मिंग टू सी कि पहले बाईपास यूज्ड टू बी ऑफ द ओल्ड पीपल, मतलब सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिलता था. आजकल 35-40 के लोग इतने कॉमन हो गए हैं कि हमारे पास बाईपास सर्जरी के लिए आते हैं. नॉट ओनली वन ब्लॉक, दे हैव मल्टीपल ब्लॉक्स इन द हार्ट, एंड इट इज़ सच अ सीरियस कंडीशन. मेनी ऑफ देम कम कि इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक हुआ होता है दैट हाफ ऑफ देयर हार्ट फंक्शन इज ऑलरेडी गॉन एट द एज ऑफ 35-40. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव एग्जाम्पल्स. मेरे फैमिली में भी है, मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज में. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई एम सीइंग राइट नाउ. दूसरी बात है, कई पेशेंट्स डिनायल में रहते हैं कि साइंस होते हैं, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ वार्निंग चीज़ें होते हैं. अगर मैं आइडेंटिफाई करके उनको बताता हूँ कि ऐसे आपको रिस्क है, उसको सीरियसली लेते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं. हाँ, इग्नोर कर देते हैं. उनको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ.
देखिए, हर किसी में जो रिस्क होता है, हर किसी में हार्ट अटैक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस में हो सकता है ये हम बता नहीं सकते। हमारा काम है वार्न करना। राइट। और आप उसको कितना सीरियसली लोगे और क्या मॉडिफिकेशंस लोगे वो अलग बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो कैसे, कौन से अर्ली सिम्टम्स या साइंस के बारे में आप बता रहे हैं जो आप लोगों को वार्न कर देते हैं, अलार्म कर देते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ये जो यंग लोग मैं देखता हूँ, ये कई सारे स्मोकर्स भी हैं। मतलब उन्होंने स्मोकिंग शायद उनके टीन एज से ही शुरू कर दी। दूसरी बात है, इनको अपना फैमिली हिस्ट्री पता नहीं है, और जिनको पता होता है उनको पता है कि 40-50 में उनके माँ बाप को ये हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुए थे। तो दे आर एट इवन मोर हायर रिस्क, बट दे आर इग्नोरेंट। करेक्ट। उनको पता नहीं है, या उनको पता है लेकिन दे थिंक दैट दे आर टू यंग टू गेट इट। ये जो डिनायल है ये बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, कि ये मुझे नहीं हो सकता है, किसी और को हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग ठीक है, सब कुछ खाना पीना ठीक ठाक है, लेकिन मैं जिम जाता हूँ रोज, मैं फिट हूँ। क्या है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस से लोग अपना फिटनेस देखते हैं, इंटरनल जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो हमें पता नहीं होता है। एंड सटल वार्निंग साइंस, जैसे आपने कहा, माइल्ड चेस्ट पेन, जितना आप रोज सीढ़ी चढ़ते हो उतने में ही अगर आपका सांस फूलने लगता है, या सीढ़ी चढ़ने से या तेज भागने से आपके छाती में टाइटनेस फील होता है, या आपको बैठे बैठे स्वेटिंग शुरू हो जाता है, यूजुअली लेट नाइट और वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सटल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कुछ लोग बीचों बीच सोते टाइम उठ जाते हैं, ऐसे लगता है कि सांस ले नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। ये सारे एक सटल वार्निंग साइंस है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड समथिंग जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ द ब्लू। ये एक क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक जैसा है। माइल्ड ट्रेमर्स इधर उधर डिटेक्ट होते हैं अगर आप सीस्मोग्राफ में देखोगे, फिर एक मेजर क्वेक आता है, फिर उसका फिर से सटल ट्रेमर्स होते हैं। ये ऐसा होता है। तो आप कह रहे हो कि आपकी बॉडी आपको अलार्म, ये साइंस दे देती है बिफोर एनीथिंग मेजर हैपेंस। बिल्कुल। और वो वार्निंग साइंस हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये कुछ ठीक नहीं है। मतलब यू नीड टू इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट। अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट, मैं रोज यही काम कर रहा हूँ, रोज यही कर रहा हूँ, बट समथिंग फील्स डिफरेंट एंड इट्स नॉट गोइंग अवे विद ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अच्छा, आपने स्मोकर्स के बारे में बोला, और जो जनरल अवेयरनेस है वो यही है कि स्मोकिंग से तो लंग्स खराब होते हैं। हाँ जी। उससे हार्ट कैसे रिलेटेड, आप थोड़ा समझाएं। सी, स्मोकिंग और निकोटीन बेसिकली उसका, अगर सिगरेट्स देखोगे तो टार, निकोटीन दो मेन सब्सटेंसेस है उसमें, और अगर वेपिंग देखोगे तो सिर्फ निकोटीन है। जैसे आप रिफाइंड निकोटीन ले रहे हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो निकोटीन डायरेक्टली अफेक्ट्स योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द एंटायर बॉडी। कार्डियो इज हार्ट, vascular is your circulatory system, head to toe, ऊपर से लेके नीचे तक। आपके ब्रेन में सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज या क्लॉट्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, आपके हार्ट में हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, मतलब इंटेस्टाइन्स में खून का सप्लाई बंद होने की वजह से इंटेस्टाइन्स मर सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है, पैरों में गैंग्रीन हो सकता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो स्मोकर एक्सक्लूसिव होते हैं डिजीजेस, और जब वो आते हैं तभी लोगों को पता चलता है कि ये कुछ स्मोकिंग की वजह से मुझे हो रहा है। ये लंग्स के ऊपर जो असर है, इसके अलावा ये सब हो सकते हैं। और हम सबको पता है कि स्मोकिंग की वजह से कई कैंसर्स हो सकते हैं, नॉट ओनली पल्मोनरी कैंसर्स, देयर आर अदर कैंसर्स आल्सो लिंक्ड। हाँ जी, बहुत सारे। तो इसका तो मान लीजिए, आई डोंट थिंक देयर इज इवन 0.1% बेनिफिट इन एनी वे अपार्ट फ्रॉम मूड एलिवेशन। अच्छा, मैं आपसे वही पूछ रहा था, जैसे जो आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं, उसमें आपके हिसाब से इज इट मोर टू डू विद द जेनेटिक्स,
or is it their current lifestyle which is actually impacting them? I think there's a strong predisposition of current lifestyle. Current हाँ lifestyle. जी, बहुत रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक आया था जो पब्लिश हुआ है जस्ट आई थिंक लास्ट मंथ. Only 50% of Indians are involved in physical activity, or rather physical exercise of some sort. I'm talking about even a simple walk. Only 50%. And 50% of us, 40% of us are obese also. Incidence of obesity is 40% right now. Latest statistics. We are almost equal to American. Almost. Getting that. हम डायबिटीज कैपिटल है Diabetes. दुनिया के. Correct. I agree. हाउ मेनी मोर रिस्क फैक्टर्स कैन आई पॉइंट आउट. ये सब हैं, चल रहे हैं अभी. और साथ साथ हमारे जो कोविड हुआ था उससे 22 to 44 के एज ग्रुप में 30% हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है. जो एज ग्रुप 22 to 44 है. Actually ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आप now that you've touched हाँ जी. on that topic, let's discuss that in detail. ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि कोविड के बाद ये ज़्यादा बढ़ गए हैं? Is it because of the COVID vaccine? Because we hear a lot of myths or I don't know rumors about कि कोविड वैक्सीन जिसने ली उससे क्लॉटिंग बन रही है, वो कहीं ना कहीं हार्ट पे भी इम्पैक्ट करता है. तो वो कितना सच है, क्या वो रूमर है? देखिए, कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ हार्ट डिजीज. मतलब जब कोविड इन्फेक्शन हुआ होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स. इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. ओके. है ना. तो हार्ट के मसल पे अफेक्ट होता है तो उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, एंड दैट लीव्स बिहाइंड सम स्कार टिश्यू इन द हार्ट, ओके. leading to arrhythmias in the future and sudden heart attacks or cardiac arrests. COVID infection affects the cardiovascular system. मतलब it increases the thickness of the blood or increases the chances of clotting in the blood circulatory system, and that can also lead to sudden heart attack. COVID has immune mediated responses as well. Correct. It overactivates your immunity Yeah. depending on the severity of your infection. That also causes harm on the heart. It causes damage to the lungs. ये तो सबको पता है. और lungs and heart are interrelated. अगर lungs ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो वो heart पे लोड पड़ता है. अगर heart ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो lungs पे लोड पड़ता है. Right. So either of the systems, if they are affected, or both of them are affected, which it is the case in COVID infection, especially severe COVID infections, then there is a 30% increased risk of heart attack in all these patients. Now, is it 30% even today? That is debatable. लेकिन शुरू में फर्स्ट 2 साल में जो रिस्क था वो मैं बता रहा हूँ. अभी जो है शायद कम हो गया है थोड़ा, क्योंकि जिन्होंने सरवाइव कर लिया उस पीरियड को, तो अभी दे आर, आई वुड से, स्लाइटली सेफर. एंड जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, रिस्क फैक्टर्स कम किए, मेडिसिन ले रहे हैं या अपने सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, इनमें रिस्क कम होता जाता है. तो ये कोविड का हुआ. कोविड वैक्सीन का जो रिपोर्ट आया, इट इज मीडिया सेंसेशनलाइजेशन. Every vaccine that is available in the commercial market carries some element of risk. There is a risk of severe allergy called anaphylaxis. There is risk of sudden death. There's risk of heart attack. You're talking about COVID vaccine? No, non-COVID. Many vaccines. Many vaccines, okay. इसीलिए आपका वो ट्रेंड है ना, एंटी वैक्सर्स, वो लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो ये जो टाइनी रिस्क है इसको मिटिगेट करना है उनको. लेकिन वो जो बिग रिस्क है of getting other diseases because you're not vaccinating, they don't understand that risk. So COVID vaccine report that came, it said that 0.01 or 0.001% risk of sudden heart attack in the short term post-COVID vaccination. Versus at the time of peak COVID wave, there was close to 40% risk of death. Which one would anybody choose? Yeah. With the vaccine. The vaccine that was created, वो crisis situation में, emergency में create किया गया था. There was no time for any clinical testing.
कहाँ टेस्ट करके बैठोगे आप? इमरजेंसी सिचुएशन था, लोग मर रहे हैं, एवरी मिनट एवरी सेकेंड वी हैड डेथ्स. So it was created in a crisis situation, not enough time to test the thing, which is why the report came much later. Because they started, when they put certain subjects into testing, तब जाके रिपोर्ट आया कि अच्छा ऐसा रिस्क था. करेक्ट. ये तो हर वैक्सीन के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, बट इट वाज सेंसेशनलाइज्ड. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वाज डन वाज द राइट थिंग, एंड इट वाज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एट दैट गिवन मोमेंट. Everything is a perspective. Right. Depends on how we look at it. And doctors are the best people to advise you about these things. Not WhatsApp, not Google, not anyone. No, I agree with you. I've asked this question from a lot of doctors, and their response is quite similar to what you're telling us right now. But rumors तो देखो बाहर फैलते ही हैं. And I think this is one of the rumors that we keep on hearing. चलिए ठीक है, let's move on and let's understand that what heart is made up of. क्या fat, क्या muscles, किससे बना होता है heart? Heart is mainly a muscle. It is a pump. उसका काम है सिर्फ ऑटोमेटिकली पंप करना जिंदगी भर, 70-80 साल. It's got 4 valves. It's a big bag of muscle. Automatically beats about 70 to 100 times in a minute. And वो उसके अंदर सर्कुलेशन रेगुलेट करने के लिए 4 चेम्बर्स होते हैं. इतना ही है. But there's no fat, it's only pure muscle. Fat is only on the surface. Okay. And that is just minimal fat, but if the person is obese on the outside, उनके हार्ट के ऊपर भी फैट कवर हो सकता है. हाँ जी. Right. Let's understand about aortic surgery. You're an aortic surgeon. So tell us how aortic surgery is different than a normal cardiovascular surgery. देखिए, सबको पता है कि बाईपास करते हैं. करेक्ट. या वाल्व चेंज करते हैं. हार्ट सर्जरी मतलब जो लेमैन नॉलेज है सिर्फ इतना ही है, लेकिन हार्ट भी जुड़ा हुआ है एओर्टा से, जो महाधमनी हम बोलते हैं, विच इज द मेन हाईवे सिस्टम ऑफ द एंटायर बॉडी. इट टेक्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट directly. It takes that much amount of pressure, which is close to 120 millimeters of mercury, and it transports from the brain to the toes. So it is like the main tree trunk. और इसके भी कई सारे डिजीजेस अफेक्ट हो सकते हैं इसी रिस्क फैक्टर से. जैसे स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, यही चीजों से, और अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से उस महाधमनी का भी पे भी इफेक्ट हो सकता है. जैसे एन्यूरिज्म्स हम जो बोलते हैं, गुब्बारे की तरफ फूल जाता है. नॉर्मल साइज होता है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर्स एओर्टा का जो डायमीटर है. वो 5, 6, 10, 14 सेंटीमीटर तक फूल सकता है. और जितना फूलता है उतना वो सडनली रप्चर होने का रिस्क होता है. और अगर वो मेन हाईवे आपका रप्चर हो गया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स अ पर्सन विल ड्रॉप डेड. एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे या किसी के घर में देखेंगे, इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ, वो एक वार्निंग साइन है कि शायद एन्यूरिज्म के वजह से हुआ होगा. और ये बहुत डेंजरस डिजीज है. ये अवेयरनेस जो है हर किसी को नहीं है, और मेरा काम है ये अवेयरनेस लाना और ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है. ये बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इसमें एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग लिए हैं. अच्छा. और टॉप टू डाउन 100% इसका अनबायस्ड ट्रीटमेंट दे सकें. आप हाथ में गिन सकते हैं. तो फॉर्चुनेटली मतलब आप ये कह रहे हो कि इतने कम सर्जन्स हैं? हाँ, जो इस पे एब्सोल्युटली 100% काम कर सकते हैं. अच्छा. जो अभी सर्जन्स हैं वो सब पार्ट या कुछ थेरेपीज में ही माहिर हैं. सब चीज़ों, जो एओर्टा है वो मल्टी सिस्टम है, ऊपर से लेके नीचे तक. मतलब किडनी से जुड़ा है, लंग से जुड़ा है, हार्ट, ब्रेन, पैरों से, इंटेस्टाइन से, सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है. तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डॉक्टर्स ये करते हैं. डॉक्टर निरंजन, माय आइडिया इज टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस. तो और बहुत सारे कॉमन लोग मेरा चैनल देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं. तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ एओर्टा होता क्या है, आप थोड़ा सा वो बताएं. देखिए, एओर्टा is the main road in your body. Its duty is to carry all the traffic that comes from your heart, which is basically the blood,
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर बॉडी। अगर कहीं पे भी कुछ भी डिस्टर्बेंस है एओर्टा में तो उस ऑर्गन को अफेक्ट करता है बहुत डेंजरसली। तो एओर्टा आप ये कह रहे हो कैन वी कॉल इट एज अ वेन? आर्टरी, आर्टरी, yeah, it carries oxygenated blood Okay. from the heart to the your entire brain body। and kidneys and lungs and everything. वो आपका लाइफलाइन है बेसिकली। ओके हाँ जी। ओके, तो आयोटा फिर बेसिकली पूरे आपकी बॉडी, आपके पूरे शरीर में ही यस, छाती से लेके हार्ट से लेके पेट तक ये पूरा एओर्टा है और इससे ब्रांचेस निकलते हैं हर ऑर्गन में। तो अगर मेन पाइप या मेन रोड में ही प्रॉब्लम है तो बाकी जगहों पे खून पहुंचेगा नहीं या प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो आप किस में स्पेशलाइज करते हैं? मतलब क्या वो ब्लॉकेज हो सकता है, हाँ। एन्यूरिज्म हो सकता है, फट सकता है, और इसके साथ साथ हार्ट के वाल्व्स खराब होने की वजह से एओर्टा पे असर पड़ सकता है। इन सब में मैं एक्सपर्ट हूँ। और सबसे ज्यादा कॉमन क्या है ब्लॉकेज? नहीं, एओर्टिक वाल्व, हाँ। उस पे एक वाल्व होता है जो हार्ट और एओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है कॉल्ड एओर्टिक वाल्व। ये सबसे कॉमन डिजीज है। ये अफेक्ट होता है तो एओर्टा भी अफेक्ट हो जाता है, मतलब छाती में एओर्टा फूल जाता है, डायलेट हो जाता है, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है। जो आप वाल्व बोल रहे हैं, इट वर्क्स लाइक अ वन साइडेड डोर, राइट? हाँ जी, हाँ जी, जिससे सिर्फ ब्लड बाहर निकल सकता है, पर अंदर नहीं जा सकता है। ओके। लेकिन अगर ये वाल्व ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, या तो ब्लड सिर्फ वापस हार्ट की तरफ ही जाता है और हार्ट पे लोड पड़ के हार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, और जितना ये बड़ा होता है उतना हार्ट फेल होता है। तो ये सारी चीजें उसी की वजह से होते हैं। ठीक है। जो आर्टरीज ब्लॉक होती है, हाँ जी, वो क्या फैट्स की वजह से ब्लॉक हो जाती है या ब्लड थिक हो जाता है उस वजह से ब्लॉक हो जाती है? उसका सबसे मेन रीजन क्या है? दोनों कारण है। पहली बात यह है कि अगर आर्टीरियल वॉल में सेल्स होते हैं, जो हमारे खून के आर्टरीज हैं हार्ट पे, उनके डायमीटर होते हैं 2 मिलीमीटर मैक्सिमम, 2 मिलीमीटर, और देर आर 3 to 4 मेन आर्टरीज ऑन द हार्ट। सिर्फ 4 ही होते हैं, इसी से पूरी जिंदगी भर वो हार्ट बीट करता रहता है। ये अगर हम एक्सटर्नल चीज़ों के वजह से, जैसे स्मोकिंग एग्जाम्पल, वो आर्टरी के लाइनिंग को इरिटेट करता है, निकोटीन। ओके। और उससे क्या होता है, जहाँ पे भी अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज इरिटेट होते हैं, वहाँ पे तुरंत ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, या इन्फ्लेमेटरी चीज़ें वहाँ पे जुड़ने लगते हैं। और उस इंजुरी के वजह से कभी कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा लेवल्स हैं हमारे बॉडी में, वो भी डेवलप हो सकते हैं उस आर्टरी के वॉल में, और वो बढ़ता जाता है कई महीनों में या कई सालों तक बढ़ता जाता है, और इवेंचुअली 50-60 में सिम्टम्स नहीं होते हैं, 50-60% ब्लॉक में, जब वो 80-90% ब्लॉक पहुंच जाता है, तब हमें पेन से चेस्ट पेन या बर्निंग सेंसेशन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। कभी क्या होता है, स्पेशली यंगर पेशेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यंगर पेशेंट्स में ये कोलेस्ट्रॉल सॉफ्ट होते हैं यूजुअली, और अगर ये कोलेस्ट्रॉल सॉफ्ट होने की वजह से रप्चर हो जाता है उसी 2 मिलीमीटर के आर्टरी में, वो तुरंत क्लॉट कर देता है और 100% ब्लॉक कर देता है। और हार्ट इतना सेंसिटिव है, हार्ट मसल बहुत सेंसिटिव है कि अगर कुछ 10 मिनट के लिए भी ब्लड सप्लाई रुक गया तो वो हार्ट मसल का उस रीजन का डेथ हो सकता है। उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच आर्टरी इज ब्लॉक्ड। अगर मेजर हो गया तो तुरंत कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और पेशेंट डाइज इमीडिएटली। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ अ हार्ट अटैक एक्चुअली हैपेंस। राइट। थोड़ा नंबर्स के हिसाब से समझते हैं कि जैसे अगर दिन में 10 पेशेंट्स आपके पास आते हैं, हाँ जी, तो उनमें से कितने परसेंट एज ब्रैकेट 30 की एज में, कितने परसेंट 40 और 50, और कितने ओल्ड एज में है? आई वुड इजीली से अबाउट 20 से 30% अभी अराउंड द एज ऑफ 40 है।
वो 35 to 40 एज ग्रुप में 35 to 20 से 40 30%। मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 से 3 लोग, हाँ जी, 10 में से 2 से 3 लोग जो है वो 35 to 40 एज ब्रैकेट हाँ में, जी, विच इज क्वाइट यंग। इससे भी यंग पेशेंट्स आते हैं? रेयर ओकेजन्स है जहाँ 20-25 में हो सकता है। दे आर डिफरेंट इश्यूज ऑल टुगेदर, उनमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या ऑलरेडी दे हैव यू नो some kind of medication abuse or smoking abuse, is sometimes unknown, it's just bad luck। लेकिन उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है उस एज में। एक बंदे को हार्ट अटैक है या हार्ट बर्न है, उसमें उसको कैसे डिफरेंस पता चलता है? देखिए, हार्ट अटैक जब होता है आपको एक ग्रिपिंग सेंसेशन आता है चेस्ट में, और उसके साथ साथ कोल्ड स्वेटिंग, डिजीनेस, लेफ्ट आर्म पेन, जॉ पेन, ये सारे साथ में आ सकते हैं। बट नॉट नेसेसरली ऑल ऑफ देम एवरी टाइम। यूजुअली 1-2 सिम्टम तो साथ में आते ही हैं, और द पर्सन हु इज गेटिंग इट विल नो दैट ही इज फीलिंग सिक। कुछ अंदर से ऐसा घुटन जैसा महसूस होता है जब ये सिम्टम्स आते हैं। दैट इज अ वेरी क्लासिक हार्ट अटैक सिम्टम। वो जो एक्सपीरियंस करते हैं उनको पता चल जाता है, बट पीपल चूज टू इग्नोर, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। और ये जो हार्ट बर्न है वो सिर्फ यहाँ पे जो जलन होता है या चेस्ट में जलन होता है, विच इज नॉट एग्रीवेटेड बाय वॉकिंग या एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से अगर वो एग्रीवेट नहीं होता है चेस्ट बर्न वगैरह, देन दैट इज जस्ट अ गैस्ट्रिक रिलेटेड सिम्टम। हालांकि गिवन द करंट सिचुएशन, आई वुड सजेस्ट एनीबडी हु हैज एनी ऑफ दीज सिम्टम्स टू ट्रीट इट मोर सीरियसली दैन जस्ट थिंक इट इज अ हार्ट बर्न, क्योंकि ऐसे कई एपिसोड्स हैं जहाँ पे लोगों पीपल हैव थॉट इट इज हार्ट बर्न बट इट हैज एंडेड अप बीइंग अ हार्ट अटैक। वो सटल साइंस होते हैं, लेकिन मुश्किल है लेमैन को उसमें डिफरेंशिएट करना। मैं आपसे समझता हूँ ये चीज़ कि आपके हिसाब से ऐसा क्यों है कि लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं ऐसे वार्निंग साइंस को? मेनली यंग पेशेंट्स, वो डिनाइल में होते हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, मैं फिट हूँ, मैं इतनी जल्दी मुझे हार्ट अटैक चीज़ें नहीं हो सकते हैं। Or are they, because I also feel, I keep hearing from a lot of different people, my friends and my colleagues and people in my family, that even if they're feeling or if they have some warning symptoms, they prefer not to show it in the hospital because they all are scared. हाँ, see there's nothing to fear. See, यहाँ पे बहुत misconception के वजह से ये चीजें हो रहे हैं। Like people are not going to the hospital because they think that वहाँ पे unnecessary expenses होंगे। Correct. Let me make a point clear through you. India has one of the best medical systems in the world. I have worked across 3 continents for the last 7 years and across 3 medical systems. Hands down, India is one of the best. यहाँ पे लोग किसी भी स्पेशलिस्ट के ऑफिस में विद इन 1 आवर पहुंच सकते हैं, वेयर बाहर अगर आपको स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए आपको कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक वेट करना है। नंबर 1, यहाँ के मेडिकल इक्विपमेंट्स आर एज गुड और इवन बेटर देन आउटसाइड। सबसे लेटेस्ट सिस्टम्स है सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हमारे हॉस्पिटल में भी हैं, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आजकल आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मिलते हैं। एट द सेम टाइम गाइडलाइंस आजकल बहुत सारे हैं, मतलब ये जो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं पिछले 50-60 साल से चलते आ रहे हैं, मतलब रिसर्च भी हुआ है, मतलब रिकमेंडेशंस भी आते हैं, हर 2 साल हर 3 साल नए रिकमेंडेशंस आते हैं और ये स्टडीज पे बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एओर्टिक डिजीजेस के बारे में अगर हम बताएं, एओर्टिक डिजीजेस में इसका बेस्ट वे ऑफ डिटेक्टिंग एन एओर्टिक डिजीज इज थ्रू echocardiogram, एंड इफ देयर इज इवन स्लाइट डायलिटेशन ऑफ द एओर्टा, सीटी स्कैन करते हैं। ओके, अगर मैं किसी को ऐसे ही बोल दूं कि सीटी स्कैन कराना है, दे मे थिंक दैट ये थोड़ा ज्यादा ही टेस्ट बता रहे हैं, जो बिना वजह टेस्ट बता रहे हैं। अभी कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन की वजह से, और मैं कहता हूं आप लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि अगर हमें एग्जामिन करना है, हेड टू टो एग्जामिन करना होता है, इट कुड बी एनीथिंग, करेक्ट है ना? एंड वी हैव डिटेक्टेड इम्पेंडिंग हार्ट अटैक्स
कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने टेस्ट कराया, सही टाइम पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और ट्रीट भी किया एंड दे लिव वेरी वेल। और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अरे हम का 1 लाख भरने के लिए बोल रहे हैं या इतने सारे टेस्ट बोलते हैं, हमें नहीं कराना है ये सब। बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू गो टू अ रेप्यूटेड डॉक्टर हो या चाहे आपके जान पहचान के डॉक्टर हो, उनके साथ जाके उनके पास जाके आप कंसल्ट करके फिर आप करा सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नो इफ यू गो टू द डॉक्टर देयर इज नथिंग टू बी वरीड। एक बार टेस्ट करा लो, शायद अगले 5-10 साल कराने की जरूरत नहीं पड़े। बट आपके हिसाब से क्या वो एक फियर ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, फियर ऑफ स्पेंडिंग अननेसेसरीली, वो जो एक मिथ है लोगों की, उसको आप हटाने के लिए क्या पेशेंट्स को कुछ सजेस्ट करते हैं या क्या, व्हाट इज योर टॉक टिप अबाउट दैट? Look at it this way. You come once, maybe you spend a few thousands, and if you're unfortunate, you end up spending 1 lakh because you have a blockage or something, you have to undergo angiogram or stenting. Versus, in a few months or years, you come back with a massive heart attack in a dying situation, and you're in the ICU, and you end up spending 10 lakhs in the hospital. ये जो आप पहले करा रहे हैं डॉक्टर के साथ विजिट करके, that is called prevention. Correct. And whereas the other one is not called cure because you can't really cure once all these things happen. It is only palliative. So you have to look at it from a broader perspective. And see, इतने सारे hospitals इसीलिए हैं क्योंकि इतने सारे diseases हैं, इतने सारे patients हैं. Correct. You believe it or not, even today we are still drastically short of doctors in India. Is it? Yes. Specialists though, we should have at least 100 specialists for a lakh of people. Patients. We basically have, 1/4 of that amount. Very, very few doctors. So, if you have doctors, you're lucky. If you're able to go to a hospital, you're lucky. So be lucky. We should be fortunate that we are able to access all these systems. So yes, you have to have your information. सब कुछ Google पे हम पढ़ सकते हैं, but we should not interpret it. Interpretation आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब समझते हैं कि लेट्स से किसी को स्टेप बाय स्टेप कि किसी को ऐसे सिम्टम्स आए और वो डॉक्टर के पास आ गया, तो कौन से टेस्ट आप पहले प्रिस्क्राइब करते हैं टू डायग्नोज वेदर देयर इज सम ब्लॉकेज और देयर आर सम हार्ट इश्यूज? वो क्या टेस्ट होते हैं? इनिशियली दे आर वेरी सिंपल। पहले चीज ये है कि वी एग्जामिन द पेशेंट, क्या सिम्टम्स है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, राइट, क्या सिम्टम्स है, क्या अगर वो स्पेसिफिक ऐसे लग रहा है कि ये हार्ट के सिम्टम्स है कि नहीं। समटाइम्स सिर्फ एंजाइटी की वजह से भी हो सकते हैं, तो द डॉक्टर विल इंटरप्रेट इट। ओके, फिर उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर वगैरह वो सब चेक होगा, फिर ईसीजी करेंगे जो नॉन इन्वेसिव है, और फिर एकोकार्डियोग्राम करेंगे, 2D एको बोलते हैं हम, या अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्टमक भी हो सकता है। फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, आपके लिपिड लेवल्स, मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करने हैं, आपके शुगर लेवल्स चेक करने हैं। आई हैव सीन 35-36 year olds with high levels of sugar, high level of hypertension, and they are not bothered about it. I have seen in the clinic. Is it? Huh? And I have when seen, you say they're not bothered about it, it means उनको कुछ करना नहीं है। अरे ठीक है सर, उन्होंने कहा था कुछ मेडिसिन, मैंने 1 महीने तक लिया, उसके बाद छोड़ दिया। And even now his, the patient's blood pressure is 160/100. हैं, ऐसे पेशेंट्स भी हैं। तो फिर अगर हमें लगे कि आपके सिम्टम्स, आपके ब्लड टेस्ट और आपके नॉन इन्वेजिव टेस्ट मैच हो रहे हैं एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन डिजीज, फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि वी नीड मोर टेस्ट। इन द सेंस सबसे आसान और लेस एक्सपेंसिव टेस्ट है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। ये जो 35-40 के एज ग्रुप में, इट्स वेरी यूजफुल। ये कम से कम ये बता देता है कि कैल्शियम डिपॉजिट्स है कि नहीं आपके आर्टरीज में, और नैरोइंग है कि नहीं, कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स है कि नहीं। अगर कुछ डाउटफुल लगता है तो हम कन्वेंशनल एंजियोग्राम भी
भी कर सकते हैं। ये इन्वेजिव होता है और ये 5 से 10 मिनट का काम है, जो एक सिंपल लोकल एनेस्थीसिया में हम डाई डाल के एक्सरे में देख लेते हैं एक्यूरेटली कि किसमें क्या ब्लॉकेज है, अगर ये डेंजरस ब्लॉकेज है कि ये डेंजरस नहीं है। डाई मीन्स अ कैमरा इनसाइड योर बॉडी? कैमरा नहीं, कैमरा बाहर रहता है। डाई मतलब एक लिक्विड होता है, जब वो डालते हैं वो ब्लैक जैसे ट्रेस आउट करते हैं आर्टरीज। ओके, उसको एंजियोग्राम बोलते हैं हम। उसको सीटी एंजियोग्राम। सीटी एंजियोग्राम एंड कन्वेंशनल एंजियोग्राम। But you saying that is very useful for people who are Very 35, useful, 40. very common. It is the most common test performed in heart patients in cardiac hospitals routinely. दिन में कम से कम एक हॉस्पिटल में 50-60 भी कर सकते हैं। क्या खर्चा होता है इसका? देखिए, इट वेरीज। आपके सीटी एंजियोग्राम वेरीज एनीवेयर बिटवीन 9 to 20,000। आपके कोरोनरी एंजियोग्राम वेरीज फ्रॉम 15 to 30,000। Two different tests. हाँ, ये दोनों अलग है। सीटी है नॉन इन्वेजिव, वो सिर्फ मशीन के अंदर जो हम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 80%, 75 to 80% स्पेसिफिक है। उसमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि मेजर ब्लॉकेज है कि नहीं। अगर कुछ डाउटफुल होते हैं तो कन्वेंशनल एंजियोग्राम जो 90%, ऑलमोस्ट 90% स्पेसिफिक है एंड सेंसिटिव है, तो वो करा सकते हैं। वो थोड़ा और एक्सपेंसिव है।